Start the next session of the day, which is session number 3, and we know it as Cultivation Change from Field to Future. And please put your hands together for our Agriculture Minister of Punjab, Shri Gurmeet Singh Khudia. Everybody, please put your hands together for him. The session will undertake the exploration of the state's agriculture sector. It will propose forward-looking reform to tackle prevailing changes, enhance productivity, and promote sustainable growth. Key themes include crops, diversification, refining the minimum support price, that is MSP framework, empowering farmer-producer organizations, that is FPOs. Then we have bolstering agriculture infrastructure and addressing environmental imperatives, charting the transformative path for Punjab's farming future. Ladies and gentlemen, I'm sure each one of you know that Punjab is called the bread making for the entire country. We produce the max of agriculture, if I'm not wrong, yes? We are the feeders to the entire country, we could also say like that. We have quite a few industries here which are really popular all across India. Specifically, I can talk about them. All across the borders, I cannot say, I'm not sure about it. Ladies and gentlemen, farming is something that defines Punjab in the golden voice. But when we talk about this, I'm sure you have a few perspective of your own which completely makes you agree and disagree to two things. That is what makes a discussion. That is why we have this session today starting in a moment right away. Thank you. Ladies and gentlemen, in the beginning for this session, I once again announce for Shri Devendra Sharma, the journalist, the writer, and the researcher. Seems like I'm having a very popular personality on stage now. Ladies and gentlemen, let us all invite on the stage the author and former State Information Commissioner, Punjab, we know as Shri Khushwant Singh. Everybody, please put your hands together for sir. Now I'm going to invite on the stage Shri Mandeep Punia, the prominent rural journalist. Everybody, please put your hands together for Mr. Mandeep. A pretty young face I could see on the fan list now. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Gurmeet Singh Khudia ji, the Agriculture Minister of Punjab. Can we hear it louder, everybody? Come on, everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. Gives me great pleasure to welcome you all for the exchange of ideas on agriculture. One of the top issues facing Punjab, always. We have with us Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudia ji, the chair. Besides him, we have agro-policy analyst Devendra Sharma ji, author of Maharaja in Denim, former Information Commissioner and himself a prominent agriculturist, Khushwant Singh. We have YouTube expert and also a farmer activist and a farmer movement cover, Mandeep Punia ji, and Professor Sukhdev Singh Sohal ji, a historian from Guru Nanak Dev University who can give us his points about the things in future. I like to say that jada sada subject हैगा, basically सानू कल्ला English च सीमित शायद नहीं करना चाहिए. कोई भी speaker जेड़ी भी ज़बान दे विच comfortable होवे, मेरा ख्याल है कि सानू समझन विच कोई problem नहीं आएगी. Agriculture नू असी बोलता रहे कि असी 247 दे बारे गल करिए. तो शायद सानू future दे बारे गल करनी चाहिए. Yes, but no future is possible without thinking about today, without knowing what the position we are in today. Particularly referring to how and what the level of water in Punjab is doing. Like a government report in 2021 said कि आने वाले 30-35 सालों च इत्थे डेजर्ट बन जाना हैगा. हुण मैनूं नहीं पता कि ये कहण नूं गल किहो जी लगदी, मेरे ते सुन के बंदा सुन हो जाए. Particularly जिन्हां ने पंजाब दे पिंडां विच रहण वाले हन, वो देखदे है कि बोर दा पानी किन्ना डूंगा हुंदा जा रहा है. For any Punjabi, I think this is a matter of great concern. Also, a report presented in the Rajya Sabha earlier this year said that Punjab uses double the quantity of fertilizers than the nation. And that has a direct impact on our soil. So I think we also need to be thinking about that. और ये सारियां गल्लां नूं असीं किसानां नूं छड्ड के नहीं कर सकते.
We see our farmers on roads, beginning more prominently from 2021, when in Delhi on Singhu and Tikri borders, they held there for so many months. And we saw that. Could have possibly continued for long, but following Prime Minister Narendra Modi's intervention, the things stopped. पर उदा कोई नबेड़ा होया, किसी ने कुछ मिलिया, ਇਹਦਾ जवाब मेरे को तो पूरा नहीं हैगा, ना ही पूरा सच जानदा, क्योंकि किसान ते फिर सड़कां ते है। लेकिन इस बार एक रूप दे विच नहीं, एक मूवमेंट दे रूप च नहीं, पंजाब दे ही वक्रे वक्रे हिस्सियां च वक्री वक्री ऑर्गेनाइजेशंस ते वो लोग उत्थे खड़े। ब्रॉडली स्पीकिंग किसान संयुक्त मोर्चा ते पंजाब किसान ते पोलिटिकल ते नॉन पोलिटिकल दो हैगे। इन्हां दे थल्ले पता नहीं किन्नियां ऑर्गेनाइजेशंस हैगे। सो why we don't have a single form? So this is a very complex issue, I know, and I don't have answers to any. पंजाब वो होएगा कि जेड़ा एग्रीकल्चर नो रीइमेजिन करेगा या रीजनरेट करेगा या उन्होंने दोबारा इस तरह से एक सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के पैटर्न विच लेके आएगा जिहदे विच लोकी भी खुश होणगे, पर्यावरण भी खुश होएगा। और जिहड़े गुरुआं दी असीं गल करदे हां पंजाब दी, वो गुरुआं दे शब्दां नूं असीं दोबारा उसनूं रिवाइव करन दे प्रयास करांगे। ये चैलेंज तुहाडे सामने हैगा, एंड आई थिंक वी ऑल हैव दिस इन फ्रंट ऑफ अस, एंड समहाउ किते ना किते साडे एक दिल विच एक डर हैगा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंट थिंकिंग जिहड़ी कहंदी है कि नहीं, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0। सारे जो कि आज दुनिया प्रयास हो रहा है कि भाई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ना चाहिए है। एंड आई फाइंड इत्थे भी पंजाब विच उही गल्लां हो रही हैं जिहड़ियां कि इंटरनैशनली होंदियां हैगियां या नैशनल लेवल ते होंदियां हैगियां। कोई कहंदा जी ड्रोन दीदियां हो जाणगियां तो तुहाडा बहुत भला हो जाएगा, कोई कहंदा जी साडे कोल इन्ने मैकेनाइजेशन हो जाएगी कि पंजाब दा कि किसान नूं खेती करन दी जरूरत नहीं होएगी, कोई कहंदा जी रोबोटिक्स हुण आण लगियां हैगियां, रोबोटिक्स इज द फ्यूचर फॉर Punjab's agriculture। Or because why we talk about Punjab agriculture, because Punjab is the state which has shown the country how to produce or has been the bread basket of the country। ये सामने उन्हें दिखाती है कि भाई पंजाब ने अगर सर्वाइव करना है क्या तो एग्रीकल्चर नो रिवाइव करना पड़ेगा। बहुत सारी दुनिया में एक सोच आती है कि the future of global economy depends upon industry। I think that was a flawed thinking। दुनिया अज मन रही है कि जो इंडस्ट्री ने अज जो एग्रीकल्चर को तबाह किया हैगा, वी हैव सैक्रीफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। लेट मी बी वेरी क्लीयर, अज कहा जाता है कि सब अमेरिका 1.5% पॉपूलेशन खेती विच रह गई हैगी है, यूरोप विच 1% तो घट पॉपूलेशन खेती विच रह गई है। लॉट ऑफ पीपल इन पंजाब वुड से कि नहीं खेती की जरूरत ही नहीं हैगी है हुण तुहानूं इत्थे, वी हैव टू क्रिएट ए न्यू पंजाब जिहड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड होएगा। नोबडी इज अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर मेरा मानना है कि 1991 के जिहड़े रिफॉर्मिस्ट सीगे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की सीगी। उन्होंने कट एंड पेस्ट अमेरिका चो लैके एक मॉडल साडे उपर चिपकाता, एंड विच वॉज कि इंडस्ट्री इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। टुडे वी रियलाइज पंजाब का अगर तुसी हाल देखो, बिकॉज वी फॉलो द इंडस्ट्रीयल मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, सानू पता है कि साडी जमीन तबाह हो गई है, पानी का लेवल कित्थे तक पहुँच गया सब नू पता है, पानी कंटैमीनेट हो गया, नदियाँ तुहाडी गंदी हो गई हैगियां, कैंसर ट्रेन इत्थों चलती हैगी है। लुक एट द काइंड ऑफ जिहड़ा बर्डन हैगा हेल्थ एंड डिजीज़ का जो सब असीं कैरी करते हैं, एंड बेसिकली इट इज़ ऑल लिंक टू फूड। एंड येट वी आर रिफ्यूजिंग टू ड्रॉ ए लेसन कि भी ये जिहड़ा मॉडल सीगा इट हैज़ फेल्ड अस। It has failed us because साडे जिहड़े पॉलिसी मेकर्स है पंजाब दे, they are also in a way accountable for all this, because वो भी वही चीज़ां लेके चलते रहे दुनिया विच जिहड़ी सानू जरूरत सीगी कि भाई जिहड़ी दुनिया कह रही सीगी ये करो, असीं वही किता। And look at what we have done to Punjab today। We need to reimagine Punjab जो तुसी कह रहे सीगे, and that reimagination will come from a kind of a initiative जिहड़ा तुसी हिम्मत रखोगे कि भाई it is disruptive। Let us not be worried about कि दुनिया की सोचेगी, इकोनॉमिस्ट की सोचेंगे। Let us be very clear कि तुसी और मैं अगला जिहड़ा अपना जीवन हैगा, how will we sustain that kind of a life, that kind of a living जो पैटर्न होएगा साडा। That is important। That should decide what should be the future of agriculture in Punjab। I think that is where I think we are lacking, I must say, and I'm trying to be little harsh because I think it is time to now speak up। पंजाब नो 2047 आज साढ़े कोल 20 साल तो ज़्यादा हैगे है, एंड द मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर बीइंग हियर, मेरा सबमिशन ये हैगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एकेडमिया इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ टू कम टुगेदर कि पंजाब दा फ्यूचर बिलोंग्स टू नॉट ग्रीन रेवोल्यूशन, इट बिलोंग्स टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एंड व्हेन आई से एवरग्रीन रेवोल्यूशन,
All I'm trying to say is कि सानू वो पंजाब दियो जिहदे विच पानी साफ होए, जमीन साफ होए, it is not toxic, your health is safe, you don't have to buy your आटा from Rajasthan or from Madhya Pradesh. तुसी दुनिया वास्ते या देश वास्ते पैदा करदे हो कणक और आटा तुसी बाहरों मंगांदे हो, क्यों? क्योंकि तुहानू पता है कि साडा कणक जिहड़ी हैगी वो पेस्टिसाइड नाल डुबी होई हैगी है. Why do you want to buy from Madhya Pradesh and so on and so forth? Why can't you create that kind of a Punjab ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ healthy environment ਮਿਲੇ, ਉਹ economics ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ related ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. But I think we need a rethinking. When I said कि भी पंजाब ਦੇ economist ਹੋਣ ਜਾਂ globally ਜਾਂ nationally economist ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ reforms ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, economic reforms, they had done a mistake. Now I think it is time to rectify that mistake. ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ engine of growth ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ. We need industry, yes, but we also need agriculture as the second engine of growth. Punjab can lay out a model of second engine of growth. Agriculture ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਮੇਰਾ submission ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ. 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ please all of you come together, work together to see that we can lay out a road map ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ because diseases ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ. I think we need to bring all that back and that can happen with you. Problem ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ policy makers ਕਰਨਗੇ. I think forget about that. It is your chance to do it now. अगर तुसी लोग अपनी उठाओगे आवाज़ तो policy makers अपने आप सुननगे. अगर तुसी लोग नहीं उठाओगे फिर तुसी blame करते रहो कि साडे जी फलानी सरकार ने ये नहीं किया, फलानी सरकार ने वो नहीं किया. बस reality ये है कि तुसी कुछ नहीं किया. And because we don't raise our issues, we listen. मैं सवेर तो और जिसके भी जानना यही सुनता है इंडस्ट्री इज द फ्यूचर, इंडस्ट्री द फ्यूचर. आई नो कि इंडस्ट्री का की फायदा हैगा और किनों फायदा हैगा. बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट इज वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट. लुक एट ग्लोबल एमिशंस. अगर स्टैंडर्ड देखिए आज अगर ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं 34% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम फूड सिस्टम्स, which means agriculture included. क्यों आ रही हैगी? Because the kind of agriculture we have brought. I think what we need is to bring about an agriculture which is not adding on to greenhouse gas emissions, which in fact helps in mitigating the global environment and so on and so forth. The ball is in your court, ladies and gentlemen. And if we start thinking on that line, we create that kind of a situation, roadmap, or whatever you want to call it, and force our governments to have a target कि 2047 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. Why are you worried ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? Why are you worried? I find lots of people saying ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ global economics ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ global economics. We were the one who did it. Now is the time to resurrect, try to see how you can be bringing in a kind of agriculture which is of course sustainable and also reinvigorating. That is the kind of model of agriculture we need. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ. Green revolution जब आई सीगी, it came because the farmers did it. We all know that. किसाना ने करता. मेरा मानना है कि जरा next evergreen revolution आएगा, it will depend upon the consumers. You and me are consumer. अगर तुसी जाके अच्छी चीज, अच्छा healthy food demand करोगे, तो आड़े सामने वो healthy food आएगा. जे तुसी demand ही नहीं करोगे healthy food वास्ते, safe food वास्ते, nobody is going to give you that healthy food or safe food. The choice is yours. Do you want that to happen or do you feel कि no, you should give up and leave it to the policy makers? Policy makers इन्ने होशियार होंदे या इन्ने अच्छे होंदे तो आज देश की इकोनॉमी का हाल नहीं होना सीगा. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो किया तुहानू सब पता है. किसानां ने बॉर्डर ते नहीं बैठे होना सी अज तक जे पॉलिसी मेकर्स ने ठीक काम लए होंदे. मैनू बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जब तो मैं इत्थे आया हैगा एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल मिनिस्टर वुड बी ऑल्सो कीन टू नो. सारे कहंदे कि भी किसान जिहड़ा हैगा सड़कां ब्लॉक कीतियां होईयां, किते ना किते बैठा होया धरने ते. की गल है किसानों को होर कोई काम नहीं हैगा? आर दे ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर ऑफ इट? मैं हर जगह कहना है कि डोंट ब्लेम द फार्मर्स, ब्लेम द पॉलिसी मेकर्स. एग्जाम्पल देना चाहना है, कॉरपोरेट दे 18 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए जो भी असीं कहने हैं माफ हो गए हैं. तुसीं कदी किसी कॉरपोरेट नूं जंतर मंतर ते प्रोटेस्ट करदे देखिया? कभी देखा तो जंतर मंतर ते प्रोटेस्ट कर रहे हो कि साडे कर्जे माफ कर दिओ? उन्होंने तो चुपचाप ही कर्जे माफ हो जाते हैं. किसानों को अपना MSP भी लैण वास्ते सड़कों पर बैठना पैंदा. क्यों? क्योंकि सिस्टम उन्होंने मदद करने को तैयार ही नहीं हैगा.
So I think let's do one thing. एक अपना तो पहली सोच बदलिए, सोच बदलोगे, then let's focus on कि किस तरह हो सकता है. पहली गल तो हैगा कि be clear कि we need a regenerative model of agriculture जिला पंजाब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ हैगा. We are in a position to do it. We have the capacity, we have the potential. The only thing lacking is the bureaucratic and policymakers initiative. So please break that. Don't worry about them. Don't worry about them. It is your call. It is your future that is more important than you worry about all the Johnnies sitting at the top. You stand up and say कि सानो ये चाहिए हैगा, and let me tell you, they will have no other option but to give you that. So ये तोड़ी एक perspective होना चाहिए तोड़े सामने. दूसरा, ये कहते हैं कि minimum support price कानूनी अधिकार कर दोगे तक किसान जड़ा हैगा देश की economy गड़बड़ा जाएगी and so on and so forth. ये एक debate चल रही है क्या? But what I am looking forward is कि जब तुसी ये हरियाली दा या तुसी एक green revolution तो evergreen revolution दा model इख्तियार करोगे तो उधर नाल तो उन्हें economics भी rework करनी पड़ेगी. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਪੁਟਸ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ. ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਪਰੋਚ. After all, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, he needs to be applauded, backed up and given an incentive for saving water. Similarly for saving soil, similarly for saving your health. ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਐਂਡ ਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ. I am surprised. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. That is why I am saying let's have an ecosystem services approach, which means we pay them according to what they conserve, what they preserve, which includes biodiversity, which includes soil, which includes your health and so on and so forth. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ. पहली गल मैं कही सी कि अपना खेती का डिज़ाइन बदलीए, दूसरा है कि तुसी अपने इकनॉमिक्स का डिज़ाइन बदलीए, और तीसरा हैगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि असी अपनी जरा थिंकिंग द पैरामीटर हैगा या पैराडाइम जरा अपना हैगा उन्हों बदलीए, बिकॉज दैट इज़ वेयर इट ऑल बिगिनस. If you are very clear कि भी सानों ये पंजाब चाहिए हैगा, सानों वो पंजाब चाहिए हैगा जेडे गुरु साडे दसदे आए इन्ने दशकों तो कि भाई तुसी ये पंजाब जिस तरह कहा जाता कि तुहाडा हवा का की रैंक हैगा, पानी का की रैंक हैगा, सानों दस्या गया हैगा, बट वी हैव ऑल फॉरगॉटन अबाउट इट. We have all forgotten about it. Nobody wants to talk about it. मैं गुरुओं के ऊपर मैं समझदा कि उस प्रदेश में जिथे आपां सारी साड़ी एनर्जी या साडा जिहड़ा सोचना हैगा उन्हां तो डराइव हुंदा हैगा, बट वी हैव फॉरगॉटन व्हाट दे हैव बीन टेलिंग अस कि पानी किस तरह बचाना हैगा, हवा किस तरह बचानी हैगी है. देयर इज ओनली वन वे टू डू इट इफ यू मूव फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर मॉडल टू द एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग मॉडल. और सर तुहाडे कोल 20 साल हैगे. 20 साल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड. मैंने पता है कि जब श्रीलंका में उन्होंने ओवरनाइट किया कि वे फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्टिलाइजर विड्रॉ कर लिया बिकॉज दे डिडंट स्टॉप इंपोर्टिंग फर्टिलाइजर, क्योंकि उन्होंने कोल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन सी. बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन तो निकलन वास्ते क्योंकि फर्टिलाइजर इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा सीगा, दे पुट अ स्टॉप टू इट. एंड सडनली वी गिव एन एग्जांपल कि देखो जी श्रीलंका भी जरा हो गया हैगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. नो, nobody is wanting you to get into Sri Lanka's pathway. What we want is to create our own pathway. और pathway हैगा कि 20 साल which let us now step by step phase out what we have. Green revolution तो निकल के बाहर आइए, evergreen revolution तरफ बढ़ने का प्रयास करिए. And 20 years is not a small period before us, ladies and gentlemen. You can change history. What you asked earlier to all of us, कि how do you change? I think that change will come from what you think has to be done today. तुसी अगर आज ये सोच लोगे, मेरा मानना है कि 20 साल बाद तुसी एक ऐसा पंजाब दोगे which will bring back the civilization जड़ी आज ऐसी खत्म करती है. We have destroyed our own civilization. If you have to go back to or reintroduce your own civilization, please see how to bring in that kind of agriculture which can not only be environmentally safe but also safe for your health and so on. Now this is possible. And finally, if you think where is the research? बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितने रिसर्च किस तरह होएगी. We have a wonderful university here which did a remarkable job in Punjab. We all know for ushering in the green revolution. I think we have to ask them to change track now.
They are all ensured that they are responsive to chemical fertilizer and pesticides. Sir, you talked about chemical fertilizer the jehdi intake hai dugni hegi hai Punjab di, and that is what has brought that fertility level to almost zero. And that is where we need to come back. So मेरा कहना है कि तुसी अपनी technologies, तुसी अपना infrastructure, तुसी अपना focus, which includes the research focus also, to reorient to a new Punjab. I look at new age farmers in Punjab, I look at a new Punjab in the era to come, and I look at the kind of strength that exists in this hall and outside also, which wants Punjab, it again becomes a harbinger of a new revolution. Punjab has always been the harbinger of revolutions. Let me tell you and assure you, Punjab can also be the harbinger of an evergreen revolution. Ladies and gentlemen, let us not let go of that opportunity. Let us not be swayed by what you are being told कि industry, industry, industry. मैं पहले भी कह चुका हूँ कि industry एक role हैगा, and you have to create the second powerhouse of economic growth, that is agriculture. And this time, don't push the agriculture model on the lines of industrial agriculture. It has done damage all over the world. It is now time to accept, rectify it, and bring in a kind of a new paradigm. मैं बड़ा hopeful हैगा कि पंजाब दे कोल क्षमता हैगी है, mental भी उदा से backup हैगा, and everything is there with पंजाब. अगर नहीं है तो किते न किते जड़ी सोच है वो असी build up नहीं कर पाए हैं, rebuild up नहीं कर पाए हैं. So with this hope that we are in a position कि we can create that kind of an atmosphere where we make our state government's policies in future not compromise at all at any level to see कि भी पंजाब नो केड़ा रास्ता इख्तियार करना हैगा. So 2047 which I am hopeful, I may not be there at that time, but I am hopeful that many of you youngsters here would be there to see. So if you sow the right seeds today, you will harvest a wonderful, wonderful agriculture in the next 20 years or so. So the ball is in your court, ladies and gentlemen. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Sharma ji. You have given complete perspective to the entire issue. Now I think speakers can probably select a subject and maybe concentrate on one. He's given us a beautiful outlines as to what the situation is, as to what possibility is in the future. I'd like to invite Khushwant Singh. Khushwant Singh, पानी दी प्रॉब्लम दे उत्ते तुसी बहुत आप भी जुड़े हो, लिखते भी रहे हो. प्लस तुसी आप अपनी फार्मिंग बिग स्केल फार्मिंग करते हो और इनोवेशन की हुई वाटर ड्रिपिंग. तुसी प्लीज आके इस चीज़ के बारे में होर अपने प्लीज इन केस यू आर कंफर्टेबल यू कैन प्लीज स्पीक फ्रॉम दैट. And also other issues as you see. Thank you Sanjeev, thank you Vikramjit ji for inviting me. मेरे personal views थोड़े different ने. मैं समझदा पंजाब दी decline दो चीज़ां नाल होई जिहड़ी agriculture and पंजाब दी decline. One was the division of Punjab, second was the land sealing act. Today जिथे agriculture पंजाब दी खड़ी है जिहड़ी असी 17 एकड़ की सीलिंग है उस तो फ्रैगमेंट होकर 2-4 एकड़ ते आ गए हैं. जब तक स्केल ऑफ इकोनॉमी नहीं एग्रीकल्चर चाहेगा ये एग्रीकल्चरिस्ट या एग्रीकल्चर सर्वाइव नहीं करेगी. इकोनॉमिस्ट से सब्सिडी बंद करो, पानी की सब्सिडी बंद करो, बिजली की बंद करो. जिस प्रोफैशन ते तुसी सीलिंग लाती उन्होंने तुसी कितना सस्टेन कर सकते हो? सब्सिडियां दे के सस्टेन कर सकते हो? और कितना तुसी कर सकते हो? देयर इज नो अदर वे. एंड बिकॉज ऑफ दिस there is no young person entering agriculture. कोई young बंदा agriculture च enter नहीं कर रहा, which is actually one of the reasons for the big decline. I feel that young mind, young technology, young enterprise, तुसी सारे इन्ने youngsters बैठे हो, कौन खेती च वापस जा रहे हैं? 5 एकड़ 6 एकड़ की खेती च कौन जाएगा? Punjab will have to revisit the land sealing act. I feel maybe not open it, at least इन्हों एक viable unit तक तो ले जाओ. एक 35 horse power का ट्रैक्टर 50 किले वाह सकता, घट्टो घट उस तक तो ले जाओ. Till that doesn't happen, I don't see. तुसी जो मर्जी घुमाई जाओ, इदां हो जाओ. तुसी सिर्फ पंचर लाओगे, होर कुछ नहीं कर सकोगे. Agriculturist has to be there. तुसी हुण मैं एक simple definition है. तुसी farmer कितना define होंदे हो? तुसी define तां होंदे हो जिस profession विच तुसी maximum time लांदे हो.
5 एकड़ वाला फार्मर मैक्सिमम शायद 2 महीने टोटल टाइम का कंज्यूम करके लांदा होएगा या 2.5 बाकी वो लेबर करता है या कुछ होर प्रोफैशन करता है। हाउ डू यू डिफाइन के फार्मर है? जब तक वो स्केलेबिलिटी एक बंदे की नहीं बनेगी टू डू इट एज अ प्रोफैशन, तुसी इनू किद्दां रेक्टिफाई कर सकोगे? तुसी ओहदे हुण मैं स्प्रिंकलर या इन्होंने ड्रिप इरीगेशन की गल की। माई फादर वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट यू नो दैट डेलीगेशन दैट वेंट टू इजराइल जदों डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप खोले। मिस्टर MS गिल आई थिंक वॉज द सैक्रटरी एग्रीकल्चर, वो लैके गए थे। उन्होंने आंदे ही मेरे फादर ने कहा भी आप सारा फार्म साडा किन्नुआं दा फार्म है लार्जली एंड आई ग्रो पॉपुलर ट्रीज कि आप इनू स्प्रिंकलर या ड्रिप ला देने हैं। और वो फायदे हिस्से मैं किन्ने देखे? लेबर कट, फर्टिलाइजर बेटर यूजेज, तुसी फर्टिलाइजर जिन्नी डोज पानी है वो यूज कर सकते हो। कंट्रोल्ड इरीगेशन, तुहानू मैं दसदा मेरा फार्म खरड़ है, उत्थे मैं पॉपुलर ड्रिप इरीगेशन नाल लाए हुए है। उत्थे तुसी कणक ते झोने के अलावा खेती नहीं कर सकते क्योंकि अप्रैल तुहानू बत्ती नहीं मिलती। सरकार जिन्ना मर्जी कह दे बत्ती मिलती है, तुहानू 2-3 घंटे तो ज़्यादा बत्ती नहीं मिलती क्योंकि हारवैसटिंग होंदी है, डर होंदा है कि अग ना लग जाए। होर कोई खेती कर ही नहीं सकता उत्थे। सो वो बाग इसलिए पॉपुलर बचे हुए है कि क्योंकि एक बार इरीगेशन तो चला दी कट्ठे 3-4 घंटे घट्टो घट्ट पानी तो दे देंगे है। बट टू अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस देयर हैज टू बी सम स्केल। तुसी जिहड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की गल करते हो, सारे कहते जी आप वी विल चेंज, आई डोंट नो चेंज होया कि नहीं। हर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप लीज घट्टो घट्ट तुसी लै सको ताकि लैंड वध जाए। बट we don't understand that one of the reasons of green revolution is consolidation of land कि लोगों की लैंड इकट्ठी हो गई, उत्थे वो मैकेनाइज या इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह क्रिएट कर सके। तुसी 4 टोटियां किद्दां खेती कर सकते हो? बाकी स्टेट्स बिहार एंड ऑल हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इन एग्रीकल्चर बिकॉज अजे तक उत्थे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड नहीं हुई, किसी का किला किते है, किसी का किला किते है। सो माई थॉट्स ऑन एग्रीकल्चर आर दैट टिल वी डोंट ब्रिंग स्केल ऑफ इकोनॉमी, जो भी हेल्दी प्रैक्टिसेस ने या एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होएगी। ये एग्रीकल्चर सिर्फ पैच वर्क करेंगे, इकोनॉमिस्ट कह देंगे यार डेवलप कर लो, कोई होर कह देगा कर लो, बट जब तक तुसी बेसिक नू ही नहीं एड्रेस करोगे हाउ विल यू मेक इट सस्टेनेबल? आई थिंक दैट्स माई थॉट ऑन इट। सो लार्जली थैंक यू। आई लाइक टू कॉल मनदीप पुनिया जी। पुनिया जी ज़मीन ते मूवमेंट नाल जुड़े रहे फार्मर्स दे जदों वो बॉर्डर्स ते सीगे, बाद च भी उन्होंने इस इशू नूं बहुत करीब तो कवर किया। पर ज़मीन दे जिहड़े बंदे उस मुद्दे नाल जुड़े हुए वो नज़रिया लेना भी ज़रूरी, क्योंकि कोई भी सलूशन मतलब सब्जेक्ट्स तो बिना कभी पूरा नहीं होएगा। मैं देवेंद्र शर्मा जी की बात से सहमत हूँ और उसी से आगे अपनी बात को रखना चाहूँगा, क्योंकि जब भी बात होती है एग्रीकल्चर की तो ये बात कही जाती है कि एग्रीकल्चर फील्ड से आप बंदों को माइग्रेट करवाइए और उनको इंडस्ट्रियल उसमें लेके आइए, तो ये बात बड़ी होती है। और इसको लेकर ना कई बार जैसे अलग अलग किस्म से आर्गूमेंट रखे जाते हैं। एक आर्गूमेंट रमेश इंदर सर ने भी रखा था कि जिसमें कहा कि उन्होंने कि हमें जो एग्रीकल्चर सिंड्रोम जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि उससे बाहर देखने की ज़रूरत है, और उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की। आपने कहा कि रेल रोकना, सड़कों पे आना, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही पंजाब की। वो आपके आर्गूमेंट मतलब आपने एग्जैक्टली ऐसे निकाला, लेकिन वो ऐसे फ्रेम हुआ। अब उसमें मुझे एक जो दिक्कत लगती है कि अभी के लिए आप ये देखिए कि आप ये तो देख रहे हैं कि किसान क्या कर रहे हैं। किसान जो कुछ भी कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो रूरल क्राइसिस से या एग्रेरियन क्राइसिस से निकल रहा है। अब कोई आदमी संकट में है, वो संकट से बाहर निकलने के लिए कुछ तो हाथ पैर लगाए मारेगा। अब वो चाहे किसी बैंक कर्मचारी जिसने उसको लोन दे रखा उसको तूड़े वाले में बंद करे, या फिर बहुत सारे किसान अगर उनकी फसलें नहीं बिक रही तो फिर वो आके रोड जाम करें। कुछ तो करेंगे अपने क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, तो वो उस एक्ट का हिस्सा है। दूसरा, आप इंडस्ट्रियल उसकी कह रहे थे ग्रोथ की, तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। आप साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप जो इंडिया के रिच किड्स हैं उनको आप देखिए कि वो कहाँ पर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे क्या वो प्रोडक्शन यूनिट्स में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल पार्क्स आप पूरे मुल्क भर में देखिए खाली पड़े हैं। व्हाट हैपन टू योर DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या हुआ, आप देखिए एक बार जाके। और मेरे को रिच किड्स का एक
स्टडी भी पड़ी है, डेटा भी पड़ी है, वो कैपिटल से कैपिटल बना रहे हैं। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई कारखाना वो लुधियाना में आके लगाएंगे और उससे वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। आप और इवन ये भी एक बड़े हैरानी का डेटा है कि जो रियल इस्टेट है उसमें जितने बड़े कॉर्पोरेट सब आए हैं, अडानी होम्स, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, पर जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो आप आजकल तो रियल इस्टेट में हाथ मार रहे हैं। और उनकी आप जब बाय नंबर्स आप जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो और निर्मला सीतारमन की भी जो बेचैनी थी वो भी हमें समझ में आ रहा था। जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनिजी होती है, पंजाब सरकार भी होती ही होगी, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि नई प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लग रही, नए जॉब क्रिएट नहीं हो रहे। उसके लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, हम सबको पता है। अभी 1 लाख इंटर्नशिप्स का ऑफर हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10,000 रुपये जो देंगे पर मंथ, 1 साल की इंटर्नशिप आप करवाइए। तो वो उसी के तरफ स्टेप है। वो क्यों किया जा रहा है सर? आपके सो कॉल्ड रिच और कॉर्पोरेट्स जिनको आप कह रहे थे कि मैन हैंडल किया गया, बिरला साहब का आपने एग्जांपल दिया बंगाल में, अभी तो किसी भी रिच कॉर्पोरेट्स को मैन हैंडल नहीं किया जा रहा। लेकिन आप देखिए कि कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जस्ट ये एक मेरे को लगता है कि ये बात क्लियर होनी चाहिए। फार्मर्स ये कर रहे हैं, फार्मर्स वो कर रहे हैं, इस पे तो बात हो ही जा रही है, बहुत हो रही है। और इस पे मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से रूरल क्राइसिस, आज हरियाणा के ऊपर एक खबर छपी ट्रिब्यून में, 70% हरियाणा के लोग सर बीपीएल में हैं, 70%। और ये जो ऑनलाइन आधार वाला जो पीडीएस सिस्टम है, आधार लिंक्ड ऑनलाइन, उससे निकल कर आया है। वैसे अगर आप बात करेंगे तो स्टेट बोलेगा 8% है, कोई 12% बोलेगा। मैं पंजाब का भी कह रहा हूँ, आप जो आधार लिंक्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ऑनलाइन वाला, उसका डेटा आप निकालिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत। जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन वाला मामला भी है। तो और ये लोगों को आप चिन्हित करिए कहाँ पे हैं। ये रूरल एरियाज में है। हम रूरल पुअर शब्द बहुत कम इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है, वैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इस समय में हमारा क्राइसिस कितना गहरा है। और शहरों में उन जगहों पर हैं जहाँ जो कि सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरीके से डेवलप हुए थे। आप फरीदाबाद का एनआईटी और जो वो आवासीय जो इलाके हैं वो देखिए, आपको दिखेंगे एक हिसाब से बीपीएल, वो सारे लोग वहीं पर आपको दिखेंगे। बीपीएल का जो बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर, वो सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। आपकी देखो, मेरे को लगता है कि जब तक वेल्थ जनरेशन है, मान लो कि आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ठीक है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लग जाए, लेकिन उसमें 8-10 हज़ार की सैलरी पे काम करना पड़े, तो वो कौन सा, मतलब जो एक माइग्रेशन वाला भी जो कंसेप्ट है, और जो नौजवान यहाँ से बाहर अपनी नई संभावनाएं देख रहे हैं अपने जीवन की, वो भी तो इसलिए देख रहे हैं ना। 10,000 रुपये में यहाँ की इंडस्ट्री में काम करने की बजाय उसको, या यहाँ पर ड्राइवरी, ट्रक की ड्राइवरी में उसको 10,000 मिलेगा, कनाडा में उसको 3 लाख रुपए मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, तो 3 लाख कमाएगा, वो 10,000 थोड़ी ना कमाएगा। जैसे 91 की बात कर रहे थे देवेंद्र शर्मा, तो ठीक है एलपीजी वाली जो बात हुई उसमें ये तो हुआ कि जो वेल्थ का फ्लो है वो तो उसको तो लिबरलाइज कर दिया। हालांकि लिबरलाइज शब्द काफ़ी डिबेटेबल भी है। खैर, इकोनॉमी हम ये बोलते हैं कि वेल्थ का जो फ्लो है उसको तो ईजी कर दिया, लेकिन जो लेबर का जो फ्लो था क्या वो ईजी किया गया? क्या जो माइग्रेशन के नियम थे कि मान लो कि ठीक है कि इनकम जो वेल्थ है वो तो इधर से उधर जा सकती है, बिजनेस कर सकते हो आप, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसके नाम पे अपने प्रोडक्ट्स आप इधर से उधर बेच सकते हो। लेकिन क्या एक मजदूर या फिर एक किसान अगर वो यहाँ की बजाय वहाँ पर दिहाड़ी करना चाहे वो कर सकता है? कितने मुश्किल वो नियम है। आईएलओ भी इसके ऊपर काफ़ी बात करता है। तो मुझे लगता है कि हम विजन 2047 की बात करें, उसमें ये 2-3 बातें तो जरूर होनी चाहिए कि एक तो ये कि जो पंजाब के खासकर और भारत के भी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फील्ड में ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें, ठीक मैं इस आर्गुमेंट को बाय करता हूँ जिसमें जो इकोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव है, पानी उतना नहीं है, ये भी सच्चाई बात है कि हमें धान से अलग भी देखना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन जो बात है एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाली, तो उसको भी बड़ा ध्यान से लागू करना पड़ेगा। श्रीलंका वाला जो आर्गुमेंट है सर सारा, और उसमें आपको भी पता है कि जो भारत में जिन्होंने एक हिसाब से कहें कि फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग के लिए झंडा उठाया, वंदना शिवा और इन सब लोगों के ऊपर ये श्रीलंका के क्राइसिस को में जो बनते हैं वो उन्हीं को लेकर ही बनते हैं। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि उस जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है उसको लेकर भी बड़ा सतर्कता के साथ कि जो संकट जितना गहरा एग्रेरियन संकट है, कहीं वो उससे और गहरा होगा या फिर वो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। हालांकि देवेंद्र शर्मा का जो पेंशन वाला आर्गुमेंट रहा, जो इन्होंने किसान की पेंशन, किसान को एक फिक्स इनकम वाला रहा, वो फार्मर पेंशन्स की डिमांड कर रहे हैं, वो भी एक जायज़ है कि
अपने 60 साल वो जीवन के दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, और उसको बाद में उनकी जो पेंशन है वो तो होनी चाहिए, और एक फिक्स्ड इनकम जैसा कुछ इस पे सोचा जा सकता है। और शायद देवेंद्र शर्मा ही वो पहले आदमी थे, उनकी एवज में मैं तो कह सकता हूँ कि 6,000 रुपये जो किसानों को मिल रहा है, शायद वो करके भी दिखाया, और वो हो सकता है वो 12,000 भी हो सकता है अगर पंजाब इसके बारे में सोचे 2047 में, तो किसान का जो फिक्स्ड पेंशन जैसा कुछ वो हो सकता है। दूसरा एक जो आर्गुमेंट अभी भी मौके पे हम जब बात कर रहे हैं, तो जो राइस की कल्टीवेशन का जो मामला फंसा हुआ है, राइस का उठान का, बेसिकली तो कल्टीवेशन का नहीं, उठान का, तो उसमें मेरे को लगता है कि पंजाब सोच सकता है कि उसकी अपनी एक कॉरपोरेशन हो जो ट्रेड करे इंटरनेशनली। तो उसमें अभी सेंटर कह रहा है कि हमें आपके चावल की ज़रूरत नहीं है, वो पेज फंसा हुआ है पूरा, हालांकि उसमें बहुत सारे और भी पेज हैं, और उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं रख रहा हूँ कि सेंटर कह रहा है पंजाब के किसानों के चावल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पंजाब सरकार का खुद का कॉरपोरेशन क्यों नहीं हो सकता कि जो एक्सपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए खुद डील करे, उसका कॉरपोरेशन क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि एक ये मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा जो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो मामला है उसको भी जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इकोलॉजिकल भी है, और पंजाब के पास सच में इतना पानी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। ये दो चीजें। Before I call on Minister Sahab, I'd like to call Professor Sukhdev Sohal ji. Briefly, sir, जो थोड़ा नजरिया है, I think he has a very futurist-looking approach to the issue, which is different from pure agriculture, but interesting, related. When we think of Punjab Vision 2047, let us keep in mind that it's related to retrospectively to 1947, when Punjab was almost dissected, brutally dissected and butchered. And now it's almost going to be in 2047, it's going to be 100 years. So this is called in philosophy millennial envisioning. It's a part of human perception. We all are entitled to think about the future. Now in the coming 23 years, what will be the face of Punjab? That is the problem, and especially in the case of agriculture. Well, my concern is about the aspect which we have not taken so far. We often feel proud of that we are in the process of demographic dividend, that age bracket which is 15 to 57 age group, and we think that on the basis of this demographic dividend we are going to be third largest economy in the world. But keep in mind, when this demographic dividend would be over in 2035, another dividend is going to be with us, that is a longevity dividend, which means older persons would be having almost 20% of the population. And that is, in fact, a very transformative change. It's going on everywhere in the world. In the West, it's almost there. Most of the societies, these societies are called aged societies. And we, in fact, under the UNO objectives, we are passing through aged society also. But they would be facing a lot of difficulties, loneliness. Now that means if by 2047 there would be 25%, let us hope that if larger population, younger population is moving out of Punjab, that could be 25% also. That means every fourth person would be older person in the Punjab. Are we prepared to handle this type of society? And this type of society, older society, which we call society with the longevity dividend, this society has experience. And this society has almost, we all know, property rights. And if everything is right in the West, like if Trump is calling America first, then there is a disturbance. You can think that any disturbance in Western societies would push those older people who are now living or getting pension in Western countries, they would be coming back to Punjab also. So my quest would be to the Honorable Minister and also to the larger audience that for 2047 we must try to think about this number of or this group of society,
how to utilize the experience of these older people. So far the experience is that most of the retired people, they are forced to leave, and almost 70 to 80% professors of the Punjab Agriculture University, they have almost gone to the Western countries. What they are doing there, that is a different matter. So we can encourage them to come back to Punjab or India, and let us share their experience so that they can handle this transition from agriculture to industry. बहुत सत्कारयोग ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ इस चर्चा ਵਿੱਚ इकट्ठे होए हैं साडे मानयोग मैंबर पार्लीमेंट सरदार विक्रमजीत सिंह सानी साहब जिन्हां ने ये वड्डा उपराला कीता है। सवेर तो ये सैशन चल रहा है, तुसीं सारिआं ने उहदे विच सांझ पाई है, हिस्सा लिया है। फतेह सांझी करिए गुरु दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 1947 बहुत दुखदाई सीगा ते 2047 नूं असीं सुखदाई करन लई असीं अपणीਆਂ खुशियां ਵਧਾਉਣ ਲਈ, अपनी तरक्की विच होण लई, खुशहाल होण लई इस हिंदुस्तान दे लोग, पंजाब दे लोग सौखी जिंदगी बतीत करन, पंजाब विजन 2047 दे संबंध विच आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं। तुहानूं सारिआं नूं बहुत मुबारक, तुसीं समां कढ के आए हो। दविंदर जी होरां ने बहुत खुल के विचारां कीतियां। किसानी ते अज दे समय ते 70% दे करीब लोग इहदे नाल सिद्धे धद्दे विच जुड़े हुए है, चाहे वो किसान है, मजदूर आ उहदे नाल संबंधित, चाहे वो कारीगर है, और जिहड़े 30% रह जाते वो भी साडी खेती नाल जुड़े हुए हैं। अनाज की लोड़ हरेक नूं आ ते इहदे जिहड़े हालात आ कोई बहुते चंगे नहीं हो रहे, दिनों दिन आपां सारे जाणदे आ। हौली हौली जिहड़ी किसानी है वो छोटी भी हुंदी जांदी है। जिवें खुशवंत जी होरां ने कहा असीं 3-4 2 किल्लिਆਂ 5 ते आ गए आ ते 5-7 किल्लिਆਂ ਦੀ खेती है जिहड़ी कोई बाहली वधिया नहीं हो सकती। शायद वो घर दी रोटी पूरी कर रहे हैं। जे किसी बच्चे नूं भी दूर नेड़े पढ़न लाउणा होवे ते फीसां दा प्रबंध करना उन्हां किसान परिवारां लई, और जे मजदूरां दी जिंदगी तां वेख रही उदों भी पिछे चली गई है। इसे देश विच एक खेतीबाड़ी है तो एक कारोबारी है। मैं कारोबारी है तो कोई बहुता इस गल ते नहीं कहता भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कारोबारी छेती तरक्की कर जांदा ते वो जिथे खेती करन वाला किसान वो संद भी नहीं पूरे कर सकता ते जिहड़ा मजदूर आ आपदा घर भी नहीं बना सकता। उत्थे कारोबारी 2-3 सालां विच चाहे तारेयारी कार ले आवे, चाहे कड़े वालियां कारां ले आवे, कोई औखी गल नहीं लगती। जदों इहो जिहा थोड़ा जिहा फर्क पैंदा जावे उदों बेचैनी वधदी जांदी है। आपां सारे जाणदे अज साडे खेती करन वालियां दे बच्चे, कदे असीं उन्हां विच मैं भी शामिल हाँ, जदों स्कूलां चों पढ़ के जांदे सन तां घर दे खेतां विच अपने कामिਆਂ ਦੀ चाह पानी देण लई भेज दिंदे सन। चाहे वो मझां गावां रखीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी पिआउण ਲਈ भी ਛੱਪੜਾਂ ਵੱਲ भेज ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ आखे लग जांदे ਸੀ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਰਦੇ ਸਾਂ। पर हुण ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੇਖਣਾ, ਨਖਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 100 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 60 ਮਣ ਕਣਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ।
ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ, MP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠਿੱਠ ਵਰਾਨ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਯੂਸ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਪੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 4 ਵਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਨਾ ਆ ਗਈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੌਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 60-65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 10,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 5-4 ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੀਏ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਗ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਕੋਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਟੂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Before we honor our guests and then we have a last session on industry, I'll request all the youth not to leave. There will be one session on trade and industry chaired by Son Saab and Harjot Bains ji, and then there will be high tea. So please bear with us for another half an hour. मैं बरियाना जी ने कहा भी कोई तत्त नहीं निकलिया, लेकिन मैं बैठा सुन रहा सी, बस एक सेकेंड की गल है। पहला तो बड़ा वधिया गल कीती दविंदर शर्मा जी ने, क्योंकि सवेर का दविंदर शर्मा जी इत्थे भी यही चल रहा है बई एग्रीकल्चर तो नाउ वी शुड गिव एम्फेसिस टू द इंडस्ट्री। तो मैं दाद दिना तुसी कहा बई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, नाउ वी शुड हैव ए एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिलीवरेबल ऑफ दिस सेशन। Second, you have very highlighted on the over-consumption and over-usage of chemical fertilizers and pesticides, क्योंकि यूरिया तो सब्सिडी चली आ रही है because it is of a quasi-political nature. I happen to also chair BRICS Agri-Business Council. I was at Moscow and ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ that is so skewed towards nitrogen. It is I think 5-6 times nitrogen, then we have hardly any phosphate or hardly any potash, or then the sulfur. That is very good, पर ज़्यादा फिक्र सोल साहब ने पाता है ਜਿਹੜਾ मैं भी सोचन च मजबूर है which should be worrisome. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਚਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕਿ ਹਾਊ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਬਿਕਮ IT ਹਬ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਪਰ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ the every fourth person in Punjab will be a senior citizen. 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, LPU 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਆਤ ਬਿਆਰਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ,
और जो खुशवंत सिंह जी ने गल की चौथी कि बई वो खेतीबाड़ी तो कोई करके राजी नहीं, भावें वो लैंड सीलिंग एक्ट है, वो मैं खुडियां साहब के दरखास्त कराँगा कि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करा के मैनू नहीं पता वो की बैकग्राउंड है, पर वो की है बई आप जो उन्होंने किया है कि लैंड सीलिंग एक्ट करके भी जो तुहाडे कोल 4-5 एकड़ जगह वायबिलिटी नहीं ट्रैक्टर या जो भी उन्होंने कंबाइन या जो भी उन्होंने एक पॉइंट रेज किया, तो वो मैं समझदा इस सैशन का चौथा डिलीवरेबल है। हुण खुडियां साहब ने अखीर दे विच बड़ियां चंगियां और सियाणियां गल्लां कीतियां कि भी पिंडां दा जो माहौल है वो जिथों चलिया सी उत्थों अगे नहीं आया। इन्होंने कीनू की गल की, पिछले साल खुडिया साहब कीनू की फसल पड़ी कि अबोर फेल हो रही है, वो छोटा साइज़ हो गया। साढ़े CEO गुरबीर संधू जी इत्थे बैठे होने, मैं दुबई जाना रहना, साडा दफ्तर है, मैं उत्थे मिले लूलू 2-4 स्टोरां 'च गया, कहते पाकिस्तान तो कीनू मंगाने हैं। असी जी सारे बायर्स 4 बायर लैके इत्थे चंडीगढ़ आ गए, अबोर भी गए, पंजाब एग्रो नाल भी बहुत मीटिंगां कीतियां, वो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया लेकिन अपना साइज़ घट सी। वट आई मीन कि जिहड़ा तुसीं पॉइंट किया ना एग्री वैल्यू चेन, वो जदों तक नहीं लगेगी किसानां नूं, जिहड़ा इत्थे कल अपना प्रोफैसर अमरजीत गरेवाल जी ने भी कल की नोट गवर्नर साहब अगे बोलना है, तो मैं सोच रहा ये तो चाहनी इन्हां दे नाल साडी कई वार्तालाप चल रही है कि जिहड़ा मिनी तौर पर फूड प्रोसैसिंग है वो पिंडां दे विच खुडियां साहब असी जोर ला लिया पिछले साल तो ही। मैं जाती तौर पर मैं क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दविंदर शर्मा जी वो ब्रेक्स भी बोली जाते, बजट भी वित्त मंत्री बोली जाती FPO, वो मैं पंजाब 2-3 ही आप ला दईए। हुण असी लगे हैं फिरोजपुर एक FPO बनाउण चिल्ली वास्ते, आखिर उन्होंने चिल्ली जयपुर विकेगी, कीनू का FPO होर कई मतलब इस तरह के सानू देखो तुसी इनीशिएटिव लवो, आपां मिनी कोऑपरेटिव बहुत वड्डे कोऑपरेटिव नहीं फार्मर्स के मिनी कोऑपरेटिव बनाइए और एग्री वैल्यू चेन जिथे क्लस्टर ऑफ जिन्हों क्लस्टर कहने हैं, बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी स्कीम है फूड प्रोसैसिंग दी स्कीम है, जोड़ा फूड उत्थे प्रजर्व हो जाए, मतलब वैल्यू एडिशन फार्मर नूं थोड़ी जी मिले। जो 10 रुपए का उत्थे कोई चीज़ टमाटर या कीनू को भी चलता उत्थे 80 का विक रहा है, तो 70 रुपये विचले ही डेटेरियोरेट हो रहे हैं। ये तुहाडा पॉइंट बहुत वैलिड सी कि एग्री वैल्यू चेन और जिहड़ा असी जदों तक क्योंकि पंजाब दे विच 2 या 3 ही मेरा ख्याल कोई एग्री फूड प्रोसैसिंग पार्क है। वो मैनू पता जो बादल साहब मुख्यमंत्री से एक बार मैं साउथ अफ्रीका का काउंसल जनरल से असी साउथ अफ्रीकन फूड प्रोसैसिंग उन्होंने लैके आए, बादल साहब ने कहा हुशियारपुर के लागे ही मित्तल साहब कोई कीनू जूस का प्लांट लगा है, लेकिन वो ऐसी कोई टैक्नोलॉजी खराब है कि जो कीनू वो पाने बीज अलग नहीं करता, वो कड़वा जूस निकल रहा है। हुण मैनू पता नहीं है, अच्छा उत्थे फिर असी उन्होंने लै गए। मतलब वट आई मीन टू से कि पंजाब जिहड़े एक तो एग्री वैल्यू चेन नूं आपां उंगारा भरीए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लई साडे कोल बहुत लोग ने, असी उन्होंने फाइनैंशियल हैल्प करन नूं तैयार हाँ, साडा कोई इंटरस्ट नहीं, उन्होंने सीड कैपिटल चाहिए करके उन्होंने चिल्ली ग्रोअर करन, वो अपना माल वेचण बाहर। ये है हुण लास्टली जिहड़ी फिकर की गल है, क्योंकि खुडियां साहब ने ठीक किया एग्रीकल्चर 1-1.5 घंटे डिस्कस नहीं हो सकता, आपां फिर देखते हैं 2-4 महीने नूं पूरा ये रखे। लेकिन मैनू हुण जिवें पिछले 2 टॉपिक्स इन द लास्ट 15 days हैव बीन सो बॉदरिंग सो डिस्ट्रैसिंग। वन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ DAP, सो वो TSP इत्थे भेजती। हुण पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी वाले बैठे है, 1993 जो DAP डी कंट्रोल हुई, मार्क फैड और रमेश इंदर सिंह जी शायद MD सन, वो मिसिस बाईयास तुहाडे नाल सी होर, वो जी DAP लिया के देंदे रहे। मेरा मतलब हुण इत्थे तो जे काले डार्क कलर की DAP नहीं है इत्थे, वो लैंदे नहीं, उन्होंने हुण TSP वाल लाना, दैन इट इज़ ए बिग थिंग। जे NPK इत्थे किसानों को की पता 12, 32, 16 एनी हाउ, पर लेट अस प्रिपेयर अवर सैल्स कि खरीफ DAP की शॉर्टेज ना है। पर मोर सीरीयस झोना वो असीं बड़ा स्टडी किया, क्योंकि हुण पार्लीमेंट आउण वाली है, सानू भी अपने हथियार तेज करने पैंदे भी किहड़ा चक दईए काम अज सवेरे, क्योंकि 0 आवर है, स्पैशल मैंशन है, साडे वर्गे गैर राजनीतिक व्यक्तियों को बोलने का टाइम भी मिल जाता है, तो नोबडी इंटरप्ट्स अस।
क्योंकि उन्होंने पता है ठीक है चलो। तो असी झोना का स्टडी किया बई पानी घटाण लई, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि पानी की आप वाटर कंजरवेशन लई PR 126 लाती, वधिया गल है। मैं 2-4 शैलर वालियां फोन किया, इंडिया गेट, दावत, लाल किला वाले, वो कहते जी इत्थे कोई रूल है 67%, ये उत्थे पिया रहा चावल पुराना क्लीयर नहीं होया, तो ये 67% मॉइस्चर थले चलेगा, 67% आउटपुट नहीं आ रही, तो सानू कंपनसेशन नहीं मिल रही। सो दैट इज़ ए वन प्रॉब्लम। मैं कहा दूजी प्रॉब्लम की है, कहते गोदाम खाली नहीं होए, वी शुड हैव फ्लैग्ड दिस इशू 6 months बिफोर एंड नॉट एट द राइट कॉर्नर, राइट एंड, कि वो जिमें सवेरे भी मैं क्या बूहे ते आई जंज दे कुड़ी दे विन्नो कन। तीजी गल मैं कहा होर कहते एक फोर्टिफाइड राइस का भी काम चल पिया पिछली बारी, गवर्नमेंट FCI ने कहा ये विटामिन पा के करो, वो विटामिन की सप्लाई वाज मे बी आई डोंट नो, दे सेड इट वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दैट इज़ वाई वी रेड इन करनाटका समथिंग हैपन। तो मैं ये दरखास्त करदा खुडिया साहब नूं कि आपां इहदी एक स्टेक होल्डर्स की कमेटी बना दिओ, फार्मर्स एंड दीज आड़तीआस एंड द शैलर्स। फूड कारपोरेशन वालियां नूं मैं गारंटी करदा मैं ले आवांगा, फूड सैकटरी नूं मैं ले आवांगा, सब नूं मैं इत्थे असीं ले आवांगे। कदी एक गोष्ठी रखो एक दिन दी, ਇਹਦਾ पूरा इलाज करो धोरे तक, नहीं तो फिर चली जाना काम। आपां कणक दे विच देखो, मतलब मैनूं दुख हुंदा है जदों असीं बाहर कारगिल वर्गी कंपनियां कोल जाने आ, वो सानूं कहंदे नहीं पंजाब दी कणक नहीं जी, मध्य प्रदेश दी कणक दिओ। सर की हो रहा, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, इट इज़ मोर द मैरीयर। नहीं जी इत्थे एफ्लाटॉक्सिन इत्थे हो, चावल की गल करो कहते कोई करनाल बंट डिजीज़ लग गई। उत्थे पिछे मैं दुबई गया, इत्थों चावल बासमती वाले ने मैनू कहा, मैं इंडिया UAE का मैंबर, मैं उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर को कहा, कहते साढ़ा जो बासमती राइस है वो अपना खुडियां साहब पेस्टिसाइड रेजिड्यू निकलिया, दुबई कंटेनर फस गए, अमरीका फस गए, वो एक अलग प्रॉब्लम है। और पेस्टिसाइड जोड़े ओवर यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है। और मैं दविंदर शर्मा जी नाल एग्री करता भी एग्रीकल्चर तो बिना गुजारा नहीं है, एवरग्रीन है, इसलिए बैटर असी 1-2 दिन का एग्रीकल्चर से रखो, सारे स्टेक होल्डर्स को आप बुलाइए। एंड विद ड्यू रिस्पैक्ट टू संजीव बरियाना जी, तुसीं कहा डिलीवरेबल, मैं कहा 4-5-6 डिलीवरेबल सानू अज मिले है। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगैदर फॉर संजीव बरियाना जी एंड एक्सीलेंट पैनल, थैंक यू। Well, ladies and gentlemen, it's time to do the felicitation of the dignitaries present out here with us on the stage. And we have Sani ji himself doing the honor. I request everyone to please put your hands together for this gracious moment that we've had such a good discussion, a panel discussion on the cultivating change from fields to future. And I request everybody to please keep seated. सिर्फ half an hour का एक session और रह गया है, उसके बाद हमारे पास we've got a beautiful and amazing tea break for all of you, and we all will have good tea together, a tea and snack session. But before than that, I'd like to request, ladies and gentlemen, our next session is about to begin, which is on industry in Punjab, challenges in growth. Okay, anybody who is willing to ask the questions, the Q&A cannot happen here inside the auditorium. So you'll have to step outside. The panelists are waiting for you outside. There's a tented area just behind the auditorium. So you can come and, yeah, you will have to speak with them personally because of the time delayed. Yes, so ladies and gentlemen, the time now is to a special thank you to the wonderful, the very amazing personality जिन्होंने साढ़े वास्ते बहुत special time कढ़िया सारे नाल discussion करने वास्ते, श्री गुरमीत सिंह खुनिया जी वास्ते, the Agriculture Minister of Punjab, एक बारी जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everybody, please put your hands together. Also for the amazing dignitaries, the panelists who are present out here, the moderator, they've all done a great job today in this session. Thank you so much, gentlemen.